فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. बनाकर ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। चलो दे यारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, respected teachers, I bid you welcome in training session of Area B2 Care Teachers Cluster 5 and 8 in Factoria Boys School. This training session is arranged in having those vacations which have been announced for vaccination program, or for those which have been announced suddenly in this the month of September for Corona SOPs. So we are here. I would like to tell you about the CARE Foundation. CARE Foundation is consist of 4 letters: CARE. C stand for cooperation, A stand for advancement, R stand for rehabilitation, and E stand for education. So it makes CARE. I would like to tell you the brief history of CARE Foundation. In 1988, when the flood hit in Shekhupura area, so most of the areas, suburban areas also came under water. So some of the philanthropists people came forward. Among them, one of the ladies, Ma'am Seema Aziz, was also them. So she moved forward and she also invited her friends, relatives and other people to come forward and help the people. So in this way, the first task that CARE done is to help out the people, those people who were the flood victims, flood ridden people. So after getting it, first of all they provided them medicine, shelter and clothing, this kind of basic things they provided. But after that it was realized by the management of CARE Foundation that such gift should be given to the people which should be the long lasting, which will be having the long lasting impact. So in this way they started coming in education, and CARE Foundation opened its first school in Iqbal town, Shekhupura, that is called CARE 1 school. Madam always quotes in her the programs and briefings that on first day admission campaign more than 250 teachers were enrolled. So that was a big achievement and contributions. So the people were really in need of quality education. So madam came forward and she opened the first school. And after that, this this connectivity did not break up, it carried it on. And in 2000 and in 1990, after 1991, in 1998, the first giant step CARE Foundation did was that they adopted 20 MCL schools.
First of all, there was adoption of 20 MCL schools, and those schools which were in a very dilapidated conditions, there where their proper infrastructure was not available, where the students were not coming due to the lacking of infrastructure. So in this way, the CARE Foundation took this task, and they signed a memorandum of understanding with local government, and they adopted 20 schools of MCL. After this, when they showed the terrific results, when they showed the brilliant performance in the education sector, so government requested to CARE Foundation that if they could adopt more schools. So in this way, the madam showed generosity, and she took the challenge, and she adopted, in 2003, 182 more schools of government in Lahore and its suburban areas. So this was a giant task, and in 2003, 182 more schools were adopted. So we call it CARE Adopted School. So here I would like to mention that CARE Foundation is the leading NGO that is a pioneer in public-private partnership, sector. It is a matter of great pride and honor for me as a CARE teacher that I am working and serving in that foundation, which is pioneer in, public-private partnership, because this is a well-known fact and result that public-private partnership is a very important, and it's playing a key role for bringing revolution in education. So there was a motto of CARE Education that quality education, and if we see the key features of CARE Foundation, so they did not, they tried to provide quality education, they trained teachers, they provided the basic facilities to the students. Here I would like to mention some of the key features of CARE Foundation, that in schools CARE Foundation provide e-tech classes, and then it has introduced a CCE project, culture, creativity and education. Then it introduced CARE Access English language classes that empower the students through English language, and they went in all the leading universities and institutes of Pakistan. They participated, and they came with flying colors. So here I would like to mention as well that CARE is also running its own school as well. It has more than 30 schools which are run by CARE Foundation in different parts of Pakistan. So the motto and belief is of Ma'am Seema Aziz, the chairperson of CARE Foundation, that no children should be outside the school. Still, the challenge is enormous. 230 million, if I'm not wrong, 2 crore and 30 lakh children are still outside the school. This is a very dismal figure. So the CARE Foundation is trying its endeavor best to bring those students in the school. So these efforts are going on. Here I would like to come back on the training session of CARE Foundation teachers that is being arranged at Factory Area School, Cluster 5 and 8, Area B2. I would like to tell you about the salient feature that we are discussing. Here is SNC, Single National Curriculum, lesson plan formation. Then we try to cover the syllabus coverage in this workshop. And then we had classroom management, micro teaching, and then we also discussed briefly about phonics. Then in the workshop, rules of CARE Foundations and other miscellaneous rules like copy checking rules. So these were very fundamentals for empowering the teachers if they are trained properly, so their confidence is raised.
they share the techniques with which they can make their lesson plan interesting. So this is very encouraging to note that those features which have been highlighted in single national curriculum that were discussed in this workshop in detail, and it was highlighted that this move is really bringing the harmony in the people of Pakistan. First time in the history of Pakistan, government has introduced this syllabus. From Karachi to Khyber, the children will be empowered with the same syllabus. So the care teachers, discuss it in detail, and they also evaluated and compared the previous syllabus and the current syllabus, and they highlighted the key features that were there in single national curriculums. Now we will take the feedback of this workshop, that how was it for them. So here I would like to request some of the teachers, those volunteers who would like to give their feedbacks. मोहम्मद अतहर रज़ाक है, MPA स्कूल शाहदरा से मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सी जगह, बहुत से प्राइवेट स्कूल, बहुत सी अकेडमी के अंदर टीचिंग की थी, लेकिन जो कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है इतना मैंने वहाँ पे नहीं सीखा था। जब मैंने सुना कि हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले मुझे तो लगा कि जो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है हो सकता है हमारे वक्त का ज़िया हो। सोचने में ये आया कि हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इस ट्रेनिंग में आया, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे एक ही फीचर क्लासरूम मैनेजमेंट जो माइक्रो टीचिंग है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से क्लास को मैनेज किया जा सकता है मज़ीद अच्छे तरीके के साथ। इसके साथ साथ मैंने टीचिंग के बहुत सारे मेथड भी सीखे। इससे पहले इतने मेथड के बारे में नहीं पता था कि स्टूडेंट्स को किस तरह क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है और किस तरीके से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ भी पढ़ाया वहाँ पे हमने ज़्यादातर बोर्ड वर्क की तवज्जो दी जाती थी और बच्चों को लेक्चर डिलीवर किया जाता था और उसके बाद बच्चों से आउटकम लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये सीखा है कि आप क्लासरूम के अंदर बच्चों से किस तरह काम करवा के बच्चों से सिखा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम किस तरीके से लिया जा सकता है बहुत कम टाइम के अंदर। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था कि इस टीचर ट्रेनिंग के अंदर आके मेरा टीचिंग मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसके ज़रिए मैं स्टूडेंट और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बच्चों को अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है। Thank you very much. My name is Haldarshar. I am from Factory Area Boys. आज हम इस ट्रेनिंग में हैं, तो इस ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी कि इस ट्रेनिंग में हमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है सीखने को मिली। पहले भी हम सीखते रहे, लेकिन इस ट्रेनिंग की खास बात ये थी कि इस ट्रेनिंग में हमने SNC जो है, ये एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, SNC जो हमने इसके बारे में हमने सारी टीचर्स के दरमियान में डिस्कशन की और हमने कुछ बेनिफिट्स भी इसके देखे कि SNC जो अभी सिलेबस इन्होंने करिकुलम बनाया है, इसमें क्या फ़र्क था ये जो पहले वाला सिलेबस था उसमें और अब SNC वाला सिलेबस में। तो SNC सिलेबस जो था, इसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही था कि ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में पहले डिफरेंट सिलेबस होता था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक ही ये सिलेबस जो है वो नामित करवाया। उसके अलावा साथ साथ इन्होंने दुनिया के बाकी 3-4 ममालिक ऐसे हैं, उसमें भी एक टाइम में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक और ऐसे हैं जिसमें ये SNC सिलेबस जो है वो इकट्ठा चल रहा है। और जहाँ तक फ़र्क की बात ये है कि जो पहला वाला सिलेबस था उसमें सिलेबस जो था वो ज़रा थोड़ा लेंथी था, लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ इतनी नहीं थी, मौजूद थी लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी। जबकि ये सिलेबस जो है SNC ये एक्टिविटी बेस्ड सिलेबस है। इस वर्कशॉप में हमने
इसमें और भी बहुत से बेनिफिट्स इस सिलेबस के सीखे हमने कि इस सिलेबस में स्टोरी से प्रेप क्लास जो है उसमें खास तौर पर प्रेप क्लास की बात की जाए तो उसमें स्टार्ट में लेसन जो है बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही नहीं डायरेक्ट नहीं हो जाता, बल्कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक स्टोरी बनाई हुई है, उस स्टोरी से टॉपिक शुरू किया जाता है ताकि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो। इसके साथ साथ इसमें ऐसे लॉज इतने ज़्यादा दे दिए गए हैं कि हमें बाइट से हमें ऑब्जेक्टिव तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हम केयर टीचर लेसन प्लान करती है तो हमें उसमें भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम उसमें से ऐसे लॉज जो हैं उसी में से अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमें एक्टिविटीज़ भी एंटर करने में अपने लेसन प्लान में मसला नहीं होगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा हम कौन सी एक्टिविटीज़ टॉपिक को लेकर करें। के लिए ज़्यादा डिटेल सिलेबस है, स्टूडेंट जो है आसान लफ्ज़ों में है, स्टूडेंट जो है वो समझने में उनको आसानी है और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस ट्रेनिंग के भी जिसमें हमने सबसे डिस्कशन सुनी, सबके बारे में हमने पूछा, सबने हमें बताया इसके बारे में और हम एक दफ़ा से हमने फिर रिकॉल हो गया हमारे जहन में, सारे स्टेप जो थे, सारे पॉइंट्स जो थे रिकॉल हो गए, जो हम पहले भूल चुके थे वो भी सारे पॉइंट्स रिकॉल हो गए। शुक्रिया, थैंक यू। हाजीकोट बॉयज़ हाई स्कूल। इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं लेसन प्लानिंग के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो लेसन प्लान है उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया गया है कि एसएमसी में जो SLOs बताए गए हैं उनको हम किस तरह से एक्टिविटीज़ और मेथडोलॉजीज़ में लेकर आ सकते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है उसमें बताया गया है कि टॉपिक से आप लोगों ने कैसे इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स निकालने हैं और कौन सी मेथडोलॉजीज़ और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ और मेथडोलॉजी सीखने को मिली हैं और ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाना है वो काफ़ी डीपली इस ट्रेनिंग सेशन में हमें बताया गया। Assalamu alaikum dear teachers, I am Mohammed Shah. I belong to Khwaja Model School, Shadra Town, Lahore. We are present here in this training session. We discuss and learn a lot of things about SNC. यहाँ पे हमने डिस्कस किया बहुत सारे डिफरेंट यानी कि वे ऑफ टीचिंग को। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमने यहाँ पर आकर यानी 40-50 टीचर नहीं है, ये 40-50,000 स्टूडेंट्स का फ्यूचर बैठा हुआ है यहाँ पे। हमने ये यहाँ पे डिफरेंट जो वे ऑफ टीचिंग थे उसको डिस्कस किया, देखा, सीखा है दूसरों से। फिर हमने यहाँ पे देखा कि लेसन प्लानिंग के हवाले से जो हम केयर फाउंडेशन में थ्रू आउट करते आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ नई चीज़ें सीखी। सिलेबस कवरेज के हवाले से कि हमने जो न्यू सिलेबस हमें दिया गया है हमने डिफरेंट टीचर्स के साथ मिलकर उसको एज अ ग्रुप वर्क हमने उसको कवर किया। उसके बाद माइक्रो टीचिंग पर डिस्कशन की और उसको हमने एज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर भी हमने देखा और बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी हमने। तो ये कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वे ऑफ टीचिंग शेयर किया, जिससे हमें इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने इस वर्कशॉप से सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग इस तरह से रहा कि हम लोगों ने शायद बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट आइडियाज़ सुनते रहे यहाँ से। और एक चीज़ देखिए कि मैंने इस वर्कशॉप में भी सबको सब एक साथ लेके चले, कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा था, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ थे, उन पर हम काम किया, हमने टीचिंग वे ऑफ टीचिंग को देखा हमने, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि हम क्लास को किस तरीके से अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपना लेसन प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पॉकेट चेकिंग के रूल्स में हमने बात की, मतलब हमने अपना सारा टीचिंग मैथड जो था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया कि डिफरेंट माइंड्स से लेकर हमने बहुत चीज़ें सीखी। हर टीचर के अपने आइडियाज़ थे, उस पर हमने देखा, उस पर हमने काम किया, एक टीम वर्क लाइफ का काम किया। सो इट्स वेरी गुड, इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिससे हम अपना नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स तक नए आइडियाज़ आए। फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा। हम लोगों को केयर फाउंडेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग सेशन हम लोगों ने कंडक्ट कराया वो बहुत मज़े का था। उसमें सबसे मज़े की बात ये थी कि हम लोगों को जितनी भी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ थी वो मिली। हर एक का अपना माइंड होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो
टीचिंग मेथड्स होते हैं, और लाजमी नहीं होता कि आप नो वन इज़ परफेक्ट, हर एक को हर मेथड नहीं आता। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐसे हमें बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब हम क्लासरूम में जाते हैं या क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। लेकिन जब ऐसे एक दूसरे से अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं तो काफ़ी न्यू आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन होती है और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात थी इस ट्रेनिंग की। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद हुसैन है। मैं सीरीज वर्ड हाई स्कूल शादरा टाउन से तल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर एज ए अरबिक और इस्लामी सब्जेक्ट टीचर हूँ। तो आज जो है वो सर ने कहा कि फ़ीडबैक देना है। तो लास्ट बार जब फीडबैक दिया गया था एसएमसी का और जो पहले और सिलेबस था उसके हवाले से, तो मेरे ख्याल में काफ़ी तब्दीलें जो हैं वो हो चुकी हैं और इस हुकूमत का ये बहुत ही अच्छा स्टेप था कि जिसने इस्लाम की तालीमात की तरफ ख़ास तवज्जो दी, जिसमें देखा जाए तो ख़ास तौर पर पहले एक बच्चा प्रॉपर कुरान पाक की तालीम को हासिल स्कूल में नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो है वो बच्चा प्रॉपर तौर पर क्लास के अंदर बैठकर कुरान की तालीम को सीखेगा और कुरान को पढ़ना सीखेगा और साथ साथ जो उसका तर्जुमा और ट्रांसलेशन जो है वो भी सीखेगा। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस सिलेबस के अंदर भी दिखाई दिया। जैसे कि देख लें, पहले 2006 के सिलेबस के अंदर जो था वो ऐसे सब्जेक्ट थे और ऐसे टॉपिक्स थे जो इस्लामियात के सिलेबस के अंदर नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद दो चीज़ों का इजाफा करके उन्होंने शामिल की। जैसे कि पहले कुरान और हदीस थे, ईमानियात और इबादात भी थी और उसके बाद हिदायत के सरचश्मे भी थे, लेकिन इसके अंदर जो था वो आम मामूलात के मुताबिक जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन थी वो नहीं थी, जिसको उसनी मुआशरत कहते हैं। और इसके हवाले से देखा जाए तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि ताकि वो मुआशरे के अंदर रहकर अपने आप को एक अच्छे तरीके से इस्लामिक लेवल पर आकर प्रेजेंट कर सकें और एक अपने आप को अच्छे तरीके से बयान कर सकें और अपने इस्लाम का दिफा कर सकें। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़, जो दुनिया के अंदर तमाम आलम के अंदर जो इस्लाम को जिन तकाज़ों का असली तकाज़े जो हैं उनका जो सामना करना पड़ता है, काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जिनके अंदर काफ़ी मसाइल ऐसे भी हैं जो हमारे अक़ीदे के साथ रिलेटेड है और उनमें काफ़ी इश्यूज़ हैं और हर बंदा जो इख्तलाफ करता है, तो उनको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बयान कर दिया गया। और मेरे ख्याल में जिसमें मेन टॉपिक जो हमारे ईमान का हिस्सा था, जैसे कि ख़त्म नबूवत का सिलसिला है, और इस हुकूमत ने पहले जो था पहले ख़त्म नबीयीन सरकारी तौर पर किताबों के अंदर ये शामिल नहीं था, लेकिन इस बार स्पेशली जो है लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन हजूर के नाम के साथ जो है वो लिख दिया गया। और ये मेरे ख्याल में हमारे ईमान के लिए सबसे बेहतरीन स्टेप लिया गया, हमारे बच्चों के ईमान मज़ीद जो बढ़ाने के लिए और उसको ताज़ा करने के लिए कि हमारा जो है आखिरी नबी पर क्या है ईमान है। अगर हम अल्लाह ताला के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते तो हमारा ईमान जो है वो दायरा इस्लाम में हम दाखिल भी नहीं होते। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले सिलेबस में ना थी। जैसा कि अब दूसरे लोग ले लें जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं, अब उनका भी उन्होंने स्पेशल एक सब्जेक्ट के लेवल के तौर पर पहले एक अलग सब्जेक्ट था जो बुक वो लेते थे और ख़रीद कर आते थे क्लास में, लेकिन अब इस हुकूमत ने ऐसे टॉपिक्स रख दिए हैं या ऐसा एक स्मार्ट सिलेबस उनका तैयार कर दिया बीच में कि जिसमें वो मिनोरिटीज़ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी बच्चे जो हैं इसके साथ तालीम हासिल कर सकते हैं और स्पेशल उनको उनके मज़हब के मुताबिक ही तालीम दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो एसएमसी के ज़रिए से तमाम स्कूलों और कॉलेज के अंदर जो है कराया जा रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल में आकर कुरान का तर्जमा और तशरीह को लाजमी करार दे दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो चुका है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हुकूमत के अंदर पहले हुकूमतों ने वो काम सर अंजाम ना दिए जो इस हुकूमत ने काम जो है सर अंजाम दिए हैं, लेकिन ये इस्लामिक लेवल पर बहुत अच्छे काम सर अंजाम थे। इस वजह से मैं इस हुकूमत को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया और इसके ज़रिए से हमें जो है वो इस्लामी मालूमात जो है उसके अंदर इजाफा भी होगा। और इसके अंदर साथ ये भी बात थी कि पहले हम इस्लामियात जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वो एक जनरली नॉलेज के तौर पर पढ़ाया जाता था, लेकिन इसके अंदर अब स्पेशली जो है वो जनरल नॉलेज नहीं होगा, बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर। और पहले 3 क्लास से इस्लामियात होती थी
और अब जो है वो प्रेप क्लास से उन्होंने इस्लाम की बात को स्टार्ट किया है। तो ये मेन डिफरेंस था ओल्ड सिलेबस के अंदर और न्यू सिलेबस के अंदर, जैसे हुकूमत ने जो है वो कैम्प किया और हम इस तरीके से अपने बच्चों को अच्छी तालीमात जो है वो इस्लाम के लेवल पर भी दे सकते हैं। Someone has just said, whenever you find a dream inside your heart, don't ever let it go, because dreams are the seed from which beautiful tomorrows grow. So we have to, materialize the dream into reality by empowering our youth, by giving the quality education. So here I would like to mention the philosophy of CARE Foundation: respect each other. And the motto of CARE Foundation is empowerment through education. And here I would like to mention that the CARE vision is that provide quality marketable education. And so this is the vision with which the chairperson is working with her dynamic and charismatic personality, and we as a CARE teachers and her entire team is facilitating, cooperating, coordinating and complementing her mission. Inshallah, Pakistan will be enlisted in the Committee of Nations by providing the quality marketable education. Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.